Okay, art is a visual language that conveys complex ideas in the most subtle manner. सभी श्रोतागण को मेरा जय जिनेंद्र। मैं सौरभ जैन आर्ट आर्किटेक्चर एंड आइकॉनोग्राफी के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मंदिर और उनमें विराजमान प्रतिमाएं, उनकी कला और संरचना, उनके पीछे का विज्ञान और रहस्य, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन शाला इस मंच पर आज हम एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैन फाउंडेशन जैन प्रिंसिपल और वैल्यूज के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रतिबद्ध संस्था है। जैन योग, जैन यात्रा, जैन टॉक्स इत्यादि कई कार्यक्रमों से हम निरंतर जैन धर्म और दर्शन से संबंधित कई कोर्सेज लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहे हैं। अब तक इन सभी कार्यक्रम के माध्यम से 150 से भी अधिक विद्वानों के द्वारा जैन जगत के कई पहलुओं पर चर्चा हुई है, जो हमारी वेबसाइट www.jainfoundation.in पर उपलब्ध है। इसी के साथ आप हमारे ऐप जैन फाउंडेशन को अपने एंड्रॉइड या एप्पल के स्मार्टफोन्स पर डाउनलोड करके धर्म से संबंधित विषयों पर जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल द जैन फाउंडेशन को सब्सक्राइब करके भी ये सारे कार्यक्रमों को देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें, जिससे कि जैन फाउंडेशन के आने वाले हर कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। जैन आर्ट, आर्किटेक्चर और आइकॉनोग्राफी के इस कोर्स को आगे बढ़ाने से पहले इस कोर्स के स्पीकर और गाइड डॉक्टर मारुति नंदन प्रसाद का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। प्रोफेसर Dr. Maruti Nandan Tiwari was the HOD of History of Arts, Banaras Hindu University for 3 terms. He is the author of several books on Indian art and iconography, particularly Jaina art. Several honors and accolades have come his way as a result of his academic activities and publications. He was invited to the Rashtrapati Bhavan thrice. He has been invited for lectures, including keynote address at SOAS, London, and at the University of Cardiff, UK, Nehru Center in London, and Berlin University in Germany. He is a Tagore National Fellow and Vice Chairman of the Indian Arts History Congress in Guwahati at the moment. Hindi Sansthan of Uttar Pradesh honored him with the Acharya Narendra Deva Puraskar and Indira Gandhi National Raja Bhasha Puraskar in Delhi. He has many books to his credit, including elements of Jaina iconography, Madhyakalin Bharatiya Pratima Lakshan, Madhyakalin Bharatiya Murti Kala Puratattva, Ambika in Jain art and literature, Khajuraho का जैन पुरातत्व। सर, मैं जैन फाउंडेशन की इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पैनल पर हमारे फाउंडर श्री रमेश भाई शाह हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आकर 2 शब्द कहें। थैंक यू सौरभ। सभी को जय जिनेंद्र। करीब 2 महीने पहले मेरा अवसर मिला पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी में विजिट करने के लिए, जहां मेरा प्रोफेसर तिवारी उनके ग्रंथों के माध्यम से पहली बार परिचय हुआ। I was fascinated and impressed to see his work, making an encyclopedia on Jain art and iconography. This particular word, iconography, has been with us. Of course, we need to know the real meaning of this. This is related with the images, the signs, what we see commonly in the temples, but one never try to understand the meaning, the true meaning, the logic, the deeper understanding of that particular images. For me, it has been very curiously from my childhood days to understand all this. And when I got this opportunity, I was really wanted to do this type of course under Jain Shala, is art related, and a series of this course. Jainism has a significant impact on the evolution of architectural styles in India. I mean, if you see and visit any of the religious places,
I think Jain architecture, Jain art very clearly stands out. I'm not telling you just because I am belonging to the Jain, but I'm sure you people have really have experienced very similarly. There are numerous amazing artistic creation in the form of images, Jain temples, and paintings. I mean, I just wanted to mention few of them: Dilwara, Ranakpur, Mirpur. But unfortunately, we don't have any guide or anybody to explain those temples. We go more for ritualistic, look at those temples, but don't try to understand the deeper meaning. Not because we don't want to do it. Many of these youngsters would like to understand, and if you understand, you will have a more deeper understanding of the religion and have a more respect to those images, which is unfortunately not available. It is turning out to be in reality. और वो भी प्रोफेसर तिवारी जब इस कोर्स के स्पीकर और गाइड है तो सोने के सुहाग जैसी बात है. मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. वी आर रियली ग्रेटफुल टू हिम कि वो इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं कि आप सभी को एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया इस सब्जेक्ट में. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. यकीनन हम अपने मंदिरों और प्रतिमाओं के बारे में, दाराहों के बारे में ऐसी कई चीजें जानेंगे जिसे आज तक हम देखते तो है पर उनके पीछे गुड रहस्य को हम नहीं जानते हैं. मेरा खुद प्रोफेसर के साथ जैन टॉक्स में सुना है जिनमें उनका रिसर्च जैन आर्ट और इकोनोग्राफी के प्रत्यक्ष मालूम होता है. जो कोई भी इस कोर्स में जुड़े वो अनडाउटली बहुत कुछ नया जानेंगे और सीखेंगे. मैंने कुछ किताबें प्रोफेसर मंगाई, हालांकि मैं उसकी डीपर स्टडी कर नहीं पाया हूं, बट रुचि थी. मैं प्रोफेसर तिवारी का जैन शाला में इस मंच पे तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. Thank you very much. I am really grateful to Jain Foundation, Ramesh Bhai, Neil Shah ji, Saurabh ji, and all who are associated with this very important organizational enterprise, which is a very, I must say, very important effort towards the entire Jain community that would be benefited. I'm going to tell you something about to which Ramesh Bhai ji has just hinted at, that whatever we look at the form in terms of aesthetic context, forms in terms of religious context of faith, rituals, but we are usually not very much concerned, or rather we do not know as to the exact meaning or the concept behind the emergence of that particular form. तो हम रूप तो देख लेते हैं जैन कॉन्टेक्स्ट में, तीर्थंकर हो, यक्ष यक्षी हो, या इवन बुद्धिस्ट में बुद्ध हो, विष्णु हो, मगर what do they stand for? They are not merely the forms, or for visual feast, or for religious worship. Beyond that, they have very important context and reference which has great meaning and relationship with the society. Whatever was done in ancient past was done for the benefit of the society, to run the society in the best possible way. The society was in the epicenter. तो केंद्र में समाज था, और समाज का हित कैसे हो, समाज कैसे
बेहतर तरीके से संचालित हो with moral ethical values, और उसमें जो प्रमोशनल सारे जो स्टेप्स हैं, डेवलपमेंटल स्टेप्स हैं, वो ग्रेजुअली उसके हिसाब से वो प्राप्त करें, बट विथ मॉरल एथिकल वैल्यूज। तो सारी जो मूर्तियां हैं, और पर्टिकुलरली जैन कॉन्टेक्स्ट में आई फाइंड, बिकॉज आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन आर्ट एज ए होल, ऑफ कोर्स with special leaning towards Jain art। और मुझे जो थ्रू आउट जो 40 वर्ष की स्टडी का अनुभव है वो ये है कि जैनिज्म में आर्ट के थ्रू मॉरल एथिकल वैल्यूज को बेस्ट तरीके से सब सारे भी जो कलाएं हैं, क्या ब्राह्मणिकल हो बुद्धिस्ट हो, उनकी अपेक्षा बेहतर तरीके से मॉरल एथिकल वैल्यूज के प्रमोशन को ध्यान में रख करके जैन कला का विकास किया गया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टू बिगिन विथ, बिकॉज कुल 8 we are going to study the entire course in 8 lectures. Today I will deal with the preliminary, or I may say the overview of Jainism and Jain art. So start with, we know that we were having the main 2 religious cultural streams. One was Vedic, another was Shramanic. Although the elements or the features of the Shramanic tradition, that is ascetic tradition, the tradition of renunciation, the tradition of austerity, the tradition of tyag, meditation, was also there in Vedic context, which subsequently was given a special manifestation in the Upanishads. So the Shramanic tradition and the Vedic, we may call, in Vedic both the tradition were there, worldly and the non-worldly or ascetic tradition, Shramanic. But subsequently we find that there were 2 main streams by the 7th, 6th century BCE, with distinct Vedic stream, Shramanic stream, and of the Shramanic stream we have Buddhism on one side and Jainism on the other side. So now to take up Jainism. Jainism comes from Jinas, who were in the center of the Jain religion, Jain faith, Jain worship, and who actually represent, who were the embodiment of all the main principles of Jainism, be it sadhana, austerity, be it tyag, renunciation, be it aparigraha, non-acquisition, be it non-violence, be it truth. So they are the best to represent all these principles of Jainism, the Jinas. And therefore, it subsequently came to be known as Jain religion or Jain faith separately. And it was Buddhism because of Buddha. So, what is Dharma? Dharma is the way of living, the code of conduct. Dharma means the preceptors, the acharyas, the sadhus, the munis, through their experience, what they introspected, what they got, they have given through their writings in the texts. They have provided the models, the best moral ethical models to run the society in the best possible way. Means dharma and society, samaj,
ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल संपृक्त हैं. They are inseparable, like a coin, two sides. And then comes art. So dharma for the human life, which also includes the animal world, how to deal with the animals. I will tell you why why the cognizances of all the genus mostly appear to be animal and birds. And this was the case with Brahminical Shiv, with bull, Vishnu with Garud, Brahma with Hams, all that. And all these associations of the Vahanas or the cognizances, in case of Brahminical context, it will be Vahan, mount, but in case of the Jain art, Jainism, it will be cognizance of the genus. So religion was there to take care of not only the human beings, but the animal world, the plant world, ecology. I will be gradually telling you about. So religion, for this, the best word in the Vedas are the Rit, the cosmic order. So dharma was to sustain the cosmic order, which is possible in the best possible way only through the truth, non-violence, non-acquisition, and also austerity. And what we experience today in 21st century, just contrary to what I have just said. And because of that, all the problems, worldly problems we are facing, whether it be pertaining to nature, the ecology, we are in danger. We have endangered ourselves. How and why, we all know. Cruelty towards animals, we all know. Untruthful behavior, violence, and all these have caused that we have all the worldly wealth, material wealth, but what we don't have and what was supposed to be there is the peace, Shanti, for which all the religions were there to tell us how to attain peace, peace of body, peace of mind, peace of heart, and then only that would lead to the final salvation, the moksha, to get out of the unending cycle of life and death. So dharma was for the human and the animal and the plant world. So both were interlinked, dharma or samaj. And then comes art. Art is what? Art is the visual manifestation of the contemporary human life, or the life which the people lived in the society. In terms of religion, faith, worship, economy, vyapar, kala, it includes everything, and that only makes the culture. Like my nose, my eyes, my face only is not Maruti Nandan. The entire body is Maruti Nandan. So likewise, dharma or culture, it included the entire society, the social personality, the entire personality of the culture, all the manifestations. And all those, what was narrated in texts as principles, ideal principles, shastras, was
to be lived and experienced in the society, achar, and that was manifested in visual renderings. वो कला में मूर्त रूप में, चाक्षुष रूप में, विजुअल रूप में दिखाई पड़ने वाले फॉर्म में अभिव्यक्त होती है, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, टेम्पल हो, सेकुलर आर्किटेक्चर हो, मूर्ति हो, देवता की हो, देवी की हो, वो तीर्थंकर हो सकते हैं, वो विष्णु हो सकते हैं, वो बुद्ध हो सकते हैं, वो अप्सरा की मूर्ति भी हो सकती है, बिकॉज एक्चुअली दे इन ऑल Indian religions, the basic concept was of the integrated society, wherein worldly, non-worldly, worldly or ascetic or spiritual world were living together. And even today we find Muni, Acharya in Jain context, they live in the society, they do come to us, we do go to them for their blessings, for getting discourses and all that, and they do come to us to preach us, to show the light. So that is there. So in entirety means the Indian religion was inclusive, Indian society was inclusive, and thereby the visual manifestation in Indian art was inclusive. Means Samaveshi, which included the worldly, the material world, the apsaras were there, the erotic figures were there, the financial activities there, the war activities were there, the teaching activities were shown, and what not, dancers were there, vocal artists were there, painters were shown. So means धर्म समग्रता में पूरे समाज को ध्यान में रख करके आदर्श सिद्धांत और नीति प्रतिपादित करता है, जो समाज के आचरण में आता है, समाज यानी हम, कंटेम्पोररी, और वही अपने समय के कला में अभिव्यक्त होता है. अगर पर्टिकुलर तीर्थंकर के प्रति विशेष रुझान है, इंक्लिनेशन है, तो ग्रंथ में चर्चा भी ऋषभनाथ की होगी ज्यादा. ऋषभनाथ आदि तीर्थंकर के रूप में कैसे पूरी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं, वो उसकी चर्चा होगी, और समाज उनको उसी आदर के साथ देखेगा, और कला में भी आदिनाथ या ऋषभनाथ को समर्पित मंदिर और मूर्तियां भी अधिक बनेंगी. तो तीनों कहीं न कहीं एक दूसरे से लिंक है, और यह विशेषता थी जैनिज्म की विशेष रूप से. It was both inclusive and exclusive. Exclusive in the sense that the main focus, the nucleus of Jain art was the Jainas, also called Tirthankaras. Vitaragi Tirthankaras, free from desire and passion. Non-attachment. गीता में जो बात कहा गया अनासक्त भाव की, कि लाभ नुकसान सबका किसी का ध्यान न करके समभाव, वह वीतराग है. तो वो तीर्थंकर केंद्र में है, और उनको केंद्र में रख के ही वो एक्सक्लूसिव हो गया, और इंक्लूसिव हुआ कि तीर्थंकर के साथ यक्ष यक्षी हैं, who will bestow upon the worshippers the desired materialistic boons. भौतिक जगत की जो उनकी आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करेंगे, वो यक्ष यक्षी. अष्टदिक्पाल भी हैं, नवग्रह भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, the goddess of prosperity.
कुबेर भी हैं, गणेश भी हैं। तो दिस वाज ब्यूटी, inclusive on one hand and exclusive so far as the basic tenets of Jainism, sadhana, tyag, ahimsa, parigraha, was also there, and which was reflected through the renderings or the representations of the jinas or the tirthankaras, vitaragi tirthankar. जो शब्द मिलते हैं, क्योंकि वो हम आज जो बीइंग ए स्टूडेंट हिस्ट्री में, हिस्ट्री की दृष्टि से आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूंगा, वो ये कि जैसे आज हमको जो शब्द मिलता है, जिन मिलता है, तीर्थंकर मिलता है, हम सबको उपयोग करते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले शब्द आता है निर्ग्रंथ, अशोक के अभिलेख में। उसके बाद जिन आता है, फिर अरहत आता है। अरहत मीन्स एलिजिबल, जो योग्य है। योग्य कैसे हो गया? क्योंकि वो वीतरागी है, वो तमाम राग, द्वेष, डिजायर और पैशन से मुक्त है, इसलिए वो अरहत है, वो योग्य हो गया। और योग्य किस चीज के लिए हो गया? वो मोक्ष का अधिकारी हो गया, साल्वेशन का अधिकारी हो गया, जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया। कैवल्य क्या है? कैवल्य यही बोध है, नॉन पोजिशन कैवल्य है। नॉट ओनली लिटिल बट नो हिंसा इज कैवल्य है। तो कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और केवल ज्ञान जो है वो लीड करेगा साल्वेशन की ओर। बट हियर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल द 24 तीर्थंकरास आर प्रेजेंट आवर सर्पिणी। हर एज में ये कॉन्सेप्ट है। जैसे एक वैदिक परंपरा में है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 एॉन्स, युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम लोग प्रेजेंट कलयुग में है। त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, और ये कंटिन्यूअस चलता था, साइकिल है, टाइम साइकिल। क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टाइम का कॉन्सेप्ट जो किया गया है वो साइकिल के रूप में किया गया है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में टाइम जो चलता है वो यूनिलैटरल, सीधे स्ट्रेट चलता है, लाइनिंग में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। नो, हमारे यहाँ अनएंडिंग साइकिल है। वैसे जैनिज्म में भी अनएंडिंग साइकिल है, जिसको 2 इयॉन्स में बांट दिया, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी। उत्सर्पिणी जिसमें ऑल द वर्च्यूज आर प्रोग्रेसिव, ग्रेजुअली इंक्रीज, और अवसर्पिणी डिक्लाइनिंग वर्च्यूज। जो कलयुग की धारणा है कि कलयुग में सारे जो सात्विक रूप हैं, जो वर्च्यूज हैं, उनका ह्रास होगा। एंड वी कैन एक्सपीरियंस अराउंड अस, भाई भाई का लड़ना, पति पत्नी के बीच में भेद, मतलब इतने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं। पहले तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट था, कभी कभी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होता था। अब तो ये कॉमन है, रह ही नहीं सकते दो लोग, बिकॉज हमारा आई कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गया है। और आई तभी खत्म होगा जब वी होगा। वी होगा तो हम दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। और जैनिज्म में क्या है? स्यादवाद जो है वो सीधे सीधे वो एक्सेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। आप भी ठीक हो सकते हो, मैं भी ठीक हो सकता हूं। वाई टू कन्फ्लिक्ट, लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी। बिकॉज हमारे पास टोटल विजन और पर्सपेक्टिव है ही नहीं। हम जब भी देखते हैं वो हमारा पार्शियल व्यू होता है, उसमें अपना सेल्फ होता है, उसमें फैमिली होता है, उसमें अपना पूरा बैकग्राउंड होता है। देयरफॉर हम व्हाटएवर वी सी एंड व्हाटएवर वी डिसाइड, वो पार्शियल है। तो हम क्यों कहें कि इट इज द फाइनल और दूसरे को रिजेक्ट करें? कितने बढ़िया ढंग से सोसाइटी को उन्होंने बांध दिया स्यादवाद के माध्यम से। तो ये जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन है।
कि जब ये एक्सक्लूसिव कहते हैं तो एक्सक्लूसिव तीर्थंकर पता नहीं कितनी चीजों को लेके आते, और तब जिन के बाद शब्द आता है तीर्थंकर, वो उसके बाद आता है, इवोल्यूशन है। कुषाण अभिलेखों में, कुषाण पीरियड के इंस्क्रिप्शंस में अरहत शब्द आते हैं। कलिंग उड़ीसा आज का जो है, कलिंग था पहले, वहां का खारवेल शासक था 1st सेंचुरी बीसीई का, यानी आज से 2200 वर्ष पहले, 1st सेंचुरी बीसीई में वहां कलिंग जिन शब्द आया है, यानी जिन शब्द पहले आ गया 1st सेंचुरी बीसी। तो निर्ग्रंथ, जिन, देन वीतरागी, and then comes तीर्थंकर. They are such a sacred soul कि वो जहां भी जाते हैं वो स्थान तीर्थ में कन्वर्ट हो जाता है, तीर्थंकर। और दूसरा ये कि वो एक प्रकार से संसार के जो प्रपंच है उस सेतु को पार करने के लिए ब्रिज का काम करते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसे होके जाओ, ये ब्रिज, इसलिए तीर्थंकर। तो नामों में भी देखिए कितना कितना गहन महत्व है। तो आज हम जैनिज्म के कुछ महत्वपूर्ण बात की चर्चा केवल कर रहे हैं, टू गिव यू द बैकग्राउंड एट द आउटसेट। सेकेंड लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि कैसे टेक्स्ट्स हैं, साइट्स हैं, उनकी क्या डेट्स हैं, वो भी एक बैकग्राउंड होगा। एंड देन थर्ड से हम लोग आ जाएंगे कैसे तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट क्या था, मूर्तियां कैसे बनी, फिर यक्ष यक्षी कैसे बने, फिर और देवी देवता कैसे बने, और इस प्रकार से हम 8 लेक्चर्स में सारी बातों को करें। एक और बात, अभी मैं बड़ा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, आज का समय ऐसा आ गया है कि हमारी जो जैनिज्म में इंक्लूसिवनेस है, उस इंक्लूसिवनेस को आज के जैन, क्षमा करेंगे जैन समाज के लोग, इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव को छोड़ दिया है उन्होंने, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को छोड़ दिया है। इतना ब्रॉड बेस लेके जैनिज्म शुरू होता है, उसको नैरो डाउन कर दिया। हमारा जैनिज्म, हमारे तीर्थंकर, और वो भी नहीं, अब हमारे श्वेतांबर और दिगंबर, उनमें असहमति है। अरे वो स्यादवाद को क्या समझेंगे आप? जब श्वेतांबर दिगंबर के भेद को आप नहीं समझ पाए और उस भेद को आप पकड़ करके बैठ गए, मैं कुछ कड़ी बातें कहूंगा अपने एक्सपीरियंस पर, आप सब क्षमा करेंगे, बट दैट इज द रियलिटी। व्हाट यू से, व्हाट यू डू, उसमें बहुत अंतर है, और व्हाट शुड बी। जैनिज्म तो इंक्लूसिवनेस है। आपका जो स्यादवाद है वो तो सीधे सीधे ये कहता है कि हर बात एक्सेप्टेबिलिटी है, और वो अलग नहीं है, वो सब अस्तिच नास्तिच, अस्तिच नास्तिच, अरे सब एक हैं, वो भी सत्य है, वो भी सत्य है, क्योंकि सब पार्शियल सत्य हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? आप उनको देखें, आज आप कहेंगे एक्सक्लूसिव अलग से जैन धर्म, नहीं, एक्सक्लूसिव जो है मैंने बताया कि क्या एक्सक्लूसिव है, दैट इज द फीचर। उन्होंने तो जिसको कहा जाए कि सरस्वती भी लिया, लक्ष्मी भी लिया, गणेश भी लिया, कुबेर भी लिया, अष्टदिक्पाल भी लिया, उन्हें तो कोई संकोच नहीं हुआ शेयरिंग में। शेयरिंग के बिना कोई सोसाइटी कभी चल सकती है? आज भी शेयरिंग है, हम आप पैंट पहन के चलते हैं हर जगह, हम आप बाहर के वो सब फूड भी लेते हैं जो बाहर से जुड़े हुए हैं, भारतीय नहीं है, और विदेश वाले भी लेते हैं। तो शेयरिंग तो बहुत एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो उस शेयरिंग के भाव को हम आज क्यों कमजोर कर रहे हैं? ये केवल जैनों की बात नहीं है, ये बुद्धिस्ट भी कर रहे हैं, ये वैदिक परंपरा के जो हिंदू की बात करते हैं वो भी करते हैं, जबकि सब उदार थे। बुद्धिस्ट बाद में जिसको कहा जाए नैरो हो गए, जैन नहीं हुए। जैन तो आकर के 20वीं सेंचुरी से होने लगे ज्यादा। श्वेतांबर दिगंबर के भेद में भी कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन आज कन्फ्लिक्ट है, मुकदमे हो जाते हैं, नहीं होने चाहिए, बिकॉज इट विल हर्ट द सोल एंड द एग्जिस्टेंस एंड द प्रिंसिपल्स। कंट्ररी टू दैट,
आप भी तीर्थंकर वीतरागी तीर्थंकर। क्यों? तो मैं आपको बताता हूं कि जो अर्लीस्ट इमेजेस कुषाण काल में बने, यानी फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी सी में 1800 वर्ष पहले आज से, वो अर्हत वर्धमान, अर्हत अरिष्टनेमि की मूर्ति है। जैन परंपरा में सरस्वती की मूर्ति है, मथुरा से मिली है, 132 सी डेटेड है। लेकिन उसमें नीचे क्या लिखा है? यह मूर्ति सब जन हितय सब जन सुखय प्राकृत में। This particular image is being installed for the happiness and welfare of all, ALL, not for the Jainas. अगर इस वाक्य को आप ध्यान करें, और कब कुषाणों का पीरियड विदेशी शासकों का काल था, उस समय का समाज ज्यादा उदार था कि हम आज ज्यादा उदार हैं? यह प्रश्न और इसका निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। हम आज इतना उदार क्यों नहीं हो पाते जो वो थे, और वो मूल स्पिरिट है उनकी। तो we should see today that the spirit of Jainism should not be lost. It should be sustained, it should be honored, it should be respected. If you really worship the Vitaragi Tirthankaras, if you really appreciate Syadvad of Jainism, if you really appreciate Aparigrah, why to have possess more and more? As much required is essential. Beyond that will cause what? You know. So now another point. The forms, I have told you, form is one thing, what we see, physical appearance, and beyond that physical appearance is the concept, and that gives the meaning and the purpose of that particular form. उस दृष्टि से हम देखें तो तीर्थंकर हो या हिंदू परंपरा में विष्णु हो, शिव हो, दुर्गा हो, गणेश हो, बुद्धिज्म में बुद्ध हो, इनकी मूर्तियां बनी, but are these forms are exactly what Vishnu was like or Tirthankar was like? No, because none of these is a portrait. वो प्रतिरूप नहीं है, शबीह नहीं है, देख के नहीं बना, सामने है बुद्ध बना दिया. These are all the conceptual forms. मानस रूप है आपका और भावनात्मक या वैचारिक प्रतिमा है. तो तीर्थंकर का जब स्वरूप बनाने की बात हुई तो मन में आया तीर्थंकर कैसे रहे होंगे. तो शास्त्र से देखा, वीतरागी हैं, साधक हैं, साधना करते हैं, अपरिग्रही हैं, तो योगी जैसा हो गए. ध्यान मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा, बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन, टू लुक इनटू वन सेल्फ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. हम सारी दुनिया को जान लेते हैं, अगर नहीं जान पाते अपने जीवन के 60, 70, 80 वर्षों में, तो अपने सेल्फ को नहीं जान पाते. और सारे धर्मों का जो मूल है वो यही है कि आप अपने सेल्फ को जान जाइए. आप हैं कौन? Who are you? What for you are? Why your presence is there in the world? Who am I? मैं मारुति नंदन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर पीएचडी हूं. नो, ये मेरा परिचय नहीं है. I am a human being. Basically everyone is a human being or animal being, and that brings us
to the concept of oneness of all. फिर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कन्फ्लिक्ट तब होगा जब आप दो मानेंगे, अपने से अलग किसी चीज को। तो ये ज्ञान होता है वीतरागी तीर्थंकर को, यही कैवल्य है। और जब सबको वो समान मान लेते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद, कैवल्य के बाद, वो फिर आते हैं और सबको उपदेश देते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और महावीर उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ देते हैं। तो और ये क्या है? ये जीवन के मूल्य है, आधारभूत। क्योंकि बाकी धर्मों में तो आपको शास्त्रीय दृष्टि से चर्चा बताई गई है। जैनिज्म का वैशिष्ट्य ये है कि जैनिज्म में जो धर्म का रूप बताया गया है वो व्यवहारिक धर्म है, आचार परक धर्म है। इट इज द धर्म, बिहेवियरल धर्म, प्रैक्टिसिंग धर्म। सत्य क्या है? प्रिंसिपल है? नो, प्रिंसिपल तो है सत्यमेव जयते। कितने लोग सत्य बोल रहे हैं? जब तक आचार में नहीं आएगा सत्य सत्य नहीं होगा। अहिंसा अहिंसा नहीं होगी सब जगह। तो अब किसको कौन मार देगा पता नहीं, विश्व में एक दूसरे देश को क्या हो जाएगा पता नहीं, घर परिवार में क्या हो जाएगा पता नहीं। अपरिग्रह, कितना मिल जाए, कितना संचय कर ले हम। एक गाड़ी है तो 10 हो जाए, चलेंगे एक पर। मोबाइल है, जो कुछ भी है वर्ल्ड में सब आप देख रहे हैं। कितने कपड़े हो जाए, कितने जूते हो जाए। और जब आप ऐसा करते हैं, उन्होंने अपरिग्रह कहा था, तो एक तो आप अटैचमेंट की ओर जाते हैं, डिटैचमेंट से अटैचमेंट की ओर जाते हैं। और वो अटैचमेंट एक स्नेयर है, पाश है जो आपको फांसता है। आप उस बंधन में आ जाते हैं ऑटोमेटिक। आज ये कपड़ा पहने कि ये पहने, आज इस गाड़ी से चले कि आज उस गाड़ी से चले। आपका जो संचय है वो आपके लिए बंधन होता है। आपकी हिंसा का जो भाव है, इसीलिए देखिए बहुत मुझे आश्चर्य होता है। अहिंसा की बात जब भी, आज नहीं, मैं बहुत बचपन से देख रहा हूं कि वो किसी के संदर्भ में कहा जाए, बात शुरू होती है बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म की अहिंसा, बुद्ध की अहिंसा। नोबडी टॉक्स ऑफ अहिंसा इन जैन कॉन्टेक्स्ट। जबकि मुझे लगता है कि गांधी जी की जो अहिंसा थी वो जैन अहिंसा, क्योंकि अहिंसा को उन्होंने कहां से पकड़ा था? मन में ही हिंसा उत्पन्न न हो। सबसे पहले कोई विकार आता है तो मन में आता है कि बड़ा दुष्ट है, उसको हम कैसे जलील कर दें, कैसे मार दें, या जो भी आ जाए, वो भी हिंसा है। मानस हिंसा, मेंटल वायलेंस। फिर आता है फिजिकल वायलेंस, और फिर बहुत ब्रूटल वायलेंस, तो एक अलग बात। तो उन्होंने क्या कहा कि मनसा वाचा कर्मणा सब, न मन में हम आने देंगे, न हम वाणी से कभी किसी को गाली या शब्द कहेंगे। वो भी हिंसा है कि तुम चोर हो, तुम दुष्ट हो, तुम पापी हो। ये हिंसा है, उसको कष्ट हुआ। और कर्म तो हुआ कि जब आपने कर दिया। तो जैनिज्म तीनों को पकड़े हुए कि नहीं, जहां से हिंसा का भाव उत्पन्न होता है वहीं से उसको, उस पर अंकुश लगाएंगे, गोट करेंगे। नो। तो अगर अहिंसा की बात करनी हो तो जैनिज्म की ही करनी चाहिए। वो बड़ा यूनिक कंट्रीब्यूशन है। और पता नहीं कैसे इस बात को आज तक लोगों ने नहीं कहा, लेकिन मुझे जब अवसर मिलता है मैं इस बात को बार बार हर फोरम पर कहता हूं। तो इस दृष्टि से जो ये मूर्तियां हैं, ये वैचारिक मूर्तियां हैं, पोर्ट्रेट नहीं है। तो तीर्थंकर के बारे में मैंने बताया, एक तो जब हुआ तो योगी के रूप में स्वरूप हो गया बैठने का। अब योगी के साथ साथ क्या है, वो महापुरुष भी हो गए। तीर्थंकर जहां जाएंगे वो तीर्थ में बन जाएगा। महापुरुष तो हो गए, वो शलाका पुरुष में है। वो महापुराण में आया है, और 63 शलाका पुरुष चरित्र में शलाका पुरुष है, वहां महापुरुष है। तो महापुरुष हो गए तो क्या करेंगे भाई? महापुरुष हो गए तो अब उनको प्रभा मंडल बना देंगे। ये महापुरुषों के लक्षण बताए गए हैं परंपरा में, भारतीय परंपरा में। बौद्ध जैन की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय सब में
यही होगा, बुद्ध के साथ भी होगा। प्रभामंडल होगा, आजान लंब बाहु, हाथ बहुत घुटने तक लंबे होंगे, कान लंबे होंगे, और तीसरा होगा चक्रवर्ती। चक्रवर्ती एक रॉयल कॉन्सेप्ट में नहीं, वो सुप्रीम रूलर होंगे, अपने मन के शासक होंगे, आत्मजयी, आत्मनियंत्रक। तो चक्रवर्ती के बाह्य लक्षण उन्होंने दिखाए कि दोनों ओर 2 चामर धारक दिखाए जाएंगे, फ्लाइविस बेरिंग अटेंडेंट्स, और जिस आसन पर वो बैठेंगे या खड़े होंगे तो कायस्वर्ग में, बैठेंगे तो ध्यान मुद्रा में, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, उसके नीचे सिंहासन 2 सिंह दिखाए जाएंगे। आज भी आप देख लें कि जो महापुरुष हैं, शंकराचार्य हैं, ये जब जाएंगे तो उनके पीछे एक चामर लिए हुए महापुरुषों के पीछे खड़े होते हैं लोग, चाहे आचार्यों के साथ, और जब बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस आसन पर भी 2 सिंह बने होते। तो ये तीनों जब मिला दिया, when all these features of the yogi, Mahapurush and Chakravarti were intermingled, then came up the form. That form was of a Jain Vitaragi Tirthankar. ऐसे बना। और फिर वो वितरागी होंगे तो उनके साथ शास्त्र में भी हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो देखने में बड़े साधक हैं तो बाल बड़े हैं, बड़े अजीब से दिख रहे हैं, वृद्ध से दिख रहे हैं, नहीं, वो तरुण रूप में दिखाई पड़े, इन फुल यूथ। फुल यूथ क्यों? बिकॉज दे वेर गोइंग टू बी इंस्पिरेशनल इमेज, दे वेर गोइंग टू बी वर्शिप्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ वर्शिपर्स। तो यूथफुलनेस एक प्रकार से आपको एनर्जी, एक मोटिवेशनल फॉर्म होता है। देखिए सब साइकोलॉजी है, कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं। फेस अगली नहीं होगा, कहा गया वो तरुण रूप में होंगे, रूपवान होंगे, दे वुड बी गुड लुकिंग, प्लीजेंट लुक होगा उनका, सुरूप होंगे, सुंदर होंगे। क्योंकि आप किसी के पास जाएं, बाल बड़े हों, चेहरा कोई तो आप नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट आप जब कहीं जाते हैं तो आप फिजिकल अपीयरेंस से फिर वो स्पिरिचुअल या इंटरनल पर जाता है। तो उस दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से इन्होंने तीर्थंकर मूर्तियों को दृश्य देखने और उपासना की दृष्टि से ऐसा स्वरूप दिया कि लोग पहुंचे और शांत, कहीं उद्विग्न नहीं, क्योंकि ध्यान में है वो दुनिया की सारी समस्याओं और कारणों को समझ चुके हैं कैवल्य ज्ञान के माध्यम से, और अब तो उन्हें बताना है, तो मूर्तियां बोलने लगती। ये फीचर जब आप देखेंगे तो आपको स्वतः लगेगा कि ये तो इनके कौन से परिग्रह है, कुछ नहीं है। श्वेतांबर है तो एक वस्त्र आपको दिख जाएगा, और दिगंबर है तो वो भी नहीं दिखेगा। कोई आभूषण नो, कोई बाहर का पैराफर नहीं लिया, नो, पूरी तरह कूल और काम। क्यों काम है? बिकॉज ही हैज बीन एबल टू लुक इनटू देमसेल्व्स एंड attained the state of self-realization, that is कैवल्य ज्ञान, absolute knowledge। शांत। उसके बाद उद्विग्नता कहाँ है? सारी उद्विग्नता तो हमारे अपने प्रपंच से पैदा होती है। तो वो एक इंस्पिरेशनल इमेज हो जाती है, और वह शबीह न होते हुए भी हमें हर समय प्रेरणा देती है। तो do we go to worship the Tirthankaras in the temples for the sake of some inspiration, or only we make dravya worship through the offering certain rituals? मैंने तो यहां तक भी देखा है
कि अब श्वेतांबर परंपरा में विदेश में भी देखा, यहाँ भी देखा कि वो मुकुट भी पहना देते हैं, हार भी पहना देते हैं। वितरागी हैं वो। ये उनके साथ न्याय है कि अन्याय है? दिस इज इम्पोजिशन ऑफ योर वेल्थ ऑन ए वितरागी तीर्थंकर whom you are going to worship, and what you are supposed to get inspiration from him. Opposed to that, you are doing your own imposition, an imposition of material wealth. नहीं होना है। तो अब आप से देखें तो मूर्तियां इतनी बातें आपको बताने लगती, क्या करिए? हमको शास्त्र समाज की सोच के आधार पर जो स्वरूप दिया गया है, वो स्वरूप जब आप देखें तो दर्शन केवल नहीं है, दर्शन के साथ साथ आप व्हाट इंस्पिरेशन यू कैन डिराइव, और वो इंस्पिरेशन होगा ट्रूथफुलनेस का, अहिंसा का। विवाह के लिए जा रहे नहीं बिना तो रास्ते में पता लगा कि साहब विवाह के भोज में पशुओं को बंद करके ले जा रहे हैं, क्या विवाह भोज में पशु मांस सर्व होगा? वो लौट पड़ेगा, रे रे रे, ये क्या? दिस इज अहिंसा। शांतिनाथ पूर्व भाव में आते हैं, कपोत गिरता है और परीक्षा लेने के लिए, और उसकी प्राण रक्षा के लिए अपने प्राण अपने शरीर का मांस दे देते। दिस इज अहिंसा। बाहुबली और भरत युद्ध के लिए आमने सामने होते हैं। बाहुबली प्रस्ताव करते हैं कि लेट अस नॉट गो फॉर द बैटल बिटवीन द आर्मीज, उससे ब्लडशेड होगा। आओ हम लोग डुएल, द्वंद्व के माध्यम से आपस में टकरा करके तय कर लें। दिस इज द यूनिक एग्जाम्पल, अहिंसा। लाइकवाइज अपरिग्रह, परिग्रह तो कुछ उनके पास है ही नहीं, अपना कहने को कुछ नहीं है, और हम तो अपना ही समेटे हुए हैं और उसी अपने में फंसे हुए हैं। तो हम कहाँ ले पा रहे हैं इंस्पिरेशन? तो ये मूर्तियां इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, इनसे हमें बहुत सी प्रेरणा मिल सकती है। और इसके अलावा फिर जब हम बात करेंगे तो, क्योंकि मैं देख रहा हूं समय भी हो रहा है, तो मैं फिर जब जिन मूर्ति की बात करूंगा तो बताऊंगा एसिमिलेशन खूब किया है, शेयरिंग, इन्हें संकोच नहीं हुआ। और कभी उसमें इन्होंने, हम लोग डरते हैं ना कि शेयरिंग किया हमने तो ऐसा नहीं कि हमारा वजूद, हमारा एग्जिस्टेंस कहीं कहीं एंडेंजर हो जाए। हम ऐसा नहीं हो कि आई माय ओन आइडेंटिटी इज लॉस्ट। नो, तीर्थंकर के साथ कोई कंप्रोमाइज किए बिना, जो उनके न्यूक्लियस हैं, उन्होंने सारी शेयरिंग कर दी। क्या कर लिया? एक शक्षी के रूप में भी ब्राह्मण देवी देवता ले लिया, सरस्वती ले लिया, लक्ष्मी ले लिया, मंदिरों पर अष्टदिक्पाल बना दिए, मूर्तियों पर मंदिरों पर नवग्रह बना दिए, गणेश बना दिए, कुबेर बना दिए। थ्रू आउट कोई हर्ज नहीं है, कोई वजूद नहीं हो, बल्कि बेटर रहा। और इसलिए जैनिज्म लगातार प्रॉस्पर करता रहा, और मथुरा से जब शुरू होता है उसके बाद पूरे भारतवर्ष का धर्म बन गया, पैरेलल टू हिंदुइज्म। जहां हिंदू मंदिर है सूर्य के, शिव के, खजुराहो में विष्णु के, वहां जैन मंदिर भी 4 हैं, बड़े बड़े हैं, मैंने इक्वली इंपॉर्टेंट। एलोरा में अगर ब्राह्मणिकल बुद्धिस्ट केव्स हैं तो जैन केव्स भी हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट। श्रवण बेलगोल में है, ओसिया में है, दिलवाड़ा में है। तो इसलिए ये पैरेलल साथ साथ चल सके, और वो इसलिए चल सके क्योंकि इनको शुरू में ही धर्म के माध्यम से बता दिया गया, स्यादवाद, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी इज लाइफ। आज भी तो हम कहते हैं कोई समस्या होती है तो भाई जीवन में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। व्हाट इज एडजस्टमेंट? समायोजन। क्या समायोजन है? परिस्थितियों के साथ समायोजन।
अरे बहुत पहले उन्होंने कह दिया, जो सियादवाद है वही समायोजन है, टू रिस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ एवरीवन, कितना भी डाइवर्स हो, क्योंकि वो भी आंशिक सत्य है, मैं भी आंशिक सत्य हूँ। पार्शियल ट्रुथ के इस आसपास ही हम रहते हैं, और हम जब यह मानने लगते हैं कि मैं ही जो कह रहा हूँ ठीक है, तो देयर कम्स द कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट को ही उन्होंने वो नेगेट कर दिया, और इसलिए शेयरिंग हो गई। और बुद्धिज्म ने शेयरिंग नहीं की बाद में, और की तो जो पहले से ब्राह्मण धर्म के देवी देवता है, विष्णु शिव शक्ति, उनका अपमान कर दिया, पैरों के नीचे दिखा दिया। बुद्धिस्ट देवता के पैरों के नीचे वो देवता बैठे हुए हैं, दबाए गए। इसलिए बुद्धिज्म 8वीं 9वीं शती के बाद भारत में धीरे धीरे समाप्त हो गया, डिक्लाइनिंग हो गया, अपरूट हो गया, खत्म हो गया। जैनिज्म इज ए लिविंग रिलीजन इन इंडिया इवन टुडे। तो जो शेयरिंग है, जो इकोलॉजी है, मैंने कहा इकोलॉजी का सम्मान, आप तीर्थंकरों के साथ 24 लांछन है, ऋषभनाथ के साथ है, अश्व संभवनाथ के साथ है, गज अजितनाथ के साथ है, लायन महावीर के साथ है, सर्प पार्श्वनाथ के साथ है, ऐसे करके। बट बेसिक डिफरेंस क्या है? अहिंसा की बात करते हैं वो, विष्णु गरुड़ पर बैठ जाते हैं, शिव बुल पर बैठ जाते हैं, राइट? शक्ति सिंह पर बैठती हैं। बुद्धिज्म में भी उनके देवता बुद्ध के अलावा बाकी सब बैठ जाते हैं, मगर तीर्थंकर बैठते नहीं है, बिकॉज सिटिंग ऑन एन एनिमल विल ऑल्सो अमाउंट टू हिंसा, वायलेंस। देखिए कितना ध्यान रखा उन्होंने नॉन वायलेंस का, मनसा वाचा कर्मणा। वो लांछन है, पीठिका पर छोटा सा बनेगा, वृषभ बनेगा, अश्व बनेगा, सिंह बनेगा, जिसका जो लांछन है उससे। तो इन छोटी छोटी बातों का उन्होंने ध्यान रखा है। तो जैन कला जो समाज से जुड़ी थी, समाज का हिस्सा थी, और शास्त्र में जिसका उल्लेख मिलता है, तो शास्त्र और समाज से जुड़ी हुई कला, बल्कि वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिविलेशन होता है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, विजुअल एक्सप्रेशन है, इसलिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। शास्त्र कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन मंदिर में मूर्तियां तीर्थंकर की सब देखते हैं। अब देख लीजिए, 5% शास्त्र पढ़ते हैं तो 100% तो कला की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए आप। अब उस कला को, उस मूर्ति को आप केवल तीर्थंकर की मूर्ति मान के केवल आस्था और द्रव्य पूजा तक सीमित रखें, या उस मूर्ति के माध्यम से आप उस तीर्थंकर के जीवन, उनके जो मूल्य हैं, उनके जो उपदेश हैं, उसकी प्रेरणा लें और जीवन में कुछ अंशों में उतारने की चेष्टा करें। कला बार बार यही स्मरण आपको दिलाती है कि आप केवल पास जाकर पूजा करें, ध्यान भी करें, लेकिन ध्यान में आप देखें क्या, उनसे मांगें क्या। आप उनसे, अगर उनसे आप मांगने लगे वीतरागी तीर्थंकर से संपत्ति और ये और वो, तो उनके प्रति अन्याय है। तो कला आपको यह भी सिखाती है कि जब आप किसी आराध्य देव के पास जाते हैं, और मूर्ति और प्रतिमा में, स्कल्पचर और आइकन में अंतर यही है कि आइकन इज ऑलवेज मींट फॉर वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप। प्रतिमा वो किसी न किसी देवता या आराध्य देव या ईश्वर से संबंधित हो, वो चाहे वीतरागी तीर्थंकर हो, चाहे शिव हो, उसके संदर्भ में, या बुद्ध हो। और उनका जो अध्ययन शास्त्र में होगा, आइकोनोग्राफी होगा, उनका जो सामाजिक पृष्ठभूमि का संदर्भ होगा, वो आइकोनोलॉजी हो जाए। तो इस दृष्टि से हम लोग आगे फिर विचार करेंगे अगले सप्ताह, और फिर अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अब मैं समझता हूँ प्रश्न को एंटरटेन करने का समय आ गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir, for this enlightening talk. बहुत बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स, बहुत कुछ जानने को मिला हमें, और ऐसा तो काफी बहुत अच्छा रहा. So, sir, thank you for your wonderful talk. The first session itself was so knowledgeable that we are already excited for the next session. Indeed, you have not just touched the technical aspects of Jain art, but brought out the essence of it. The idea on how society and contemporary thought affects art and its development is quite fascinating. And not just human ideas, but also how nature inspires art. Something that you talked about, the Lanchanas of Tirthankaras, and something that we were not aware about it. And of course, you discussed about the concept of Tirthankaras and how the concept of Tirthankara is not just restricted to Vitragi Dev, but how it encapsulates within itself the idea of a Chakravarti, a Vitragi, and how the Ashtapratihārya and everything speaks about the greatness of Tirthankara. And of course, one thing which we always see but we never notice, the fact that the Tirthankaras are never seated on top of their lanchanas or on top of their animal vehicles. They're always shown on the pedestal, something that is to show the concept, the giant concept of ahimsa. So these are ideas that we were never. That is something that we saw but we never noticed, as you already said. So this was indeed a very fruitful and a very enlightening session. Um, Sir, we have a few questions from our participants, which I would like to read in front of you. The first, No, just someone were asking for the reference books. I have sent you the books. okay, You can. okay, surely, sir, we will share it with them. We will share it with all our participants, surely. Sir, we have a question from Oshin Baum, who is from Pune, and the question is there really any archaeological evidence of presence of Jainism before Lord Mahavir? If not, then where did the earlier 23 Tirthankara system came from? Yes, now gradually the evidence is available, or rather are coming, because evidences could be of two kinds, direct or indirect, and suggestive, we may say. So far as Indus Valley is concerned, so far as the Vedas are concerned, in Vedas we have references to Shishna Devatas, Vatarashna Munis. Vatarashna means who do not wear any drapery, means undraped, sky-clad. And Shishna, again the naked, the Munis. So Muni Dharma, Muni Parampara, ascetic tradition, Shramanic tradition was there in the Vedas. We have got from Harappa a new torso which has been identified by two very important scholars, T. N. Ramchandran and one now name I am just forgetting, as that of Jain Tirthankar. Not definite evidence, but they at least suggest that the Shramanic tradition, Muni tradition was very much there right from the time of the Indus Valley and the Vedic period. And also we have references that during the time of the Mahavir, his wooden image was made by some god, Vidunmali, while he was absorbed in meditation in royal insignia in the palace. So all these evidence at least suggest, and which make us inclined to believe that if or and when the Indus Valley script is deciphered, definitely maybe some other and some very important revelation comes to us. But this much is sure that this Muni tradition was there, and from the Muni or Shramanic tradition,
itself gradually evolved the Jainism and the concept of Tirthankaras and the Jinas, at least from 4th, if not earlier, century BCE. Lohanipur image and also the reference of, yes, next. Yes, sir. We have Yogita ji who wants to speak something. Can we please have her unmute? I'm Okay, I think there is some problems. We will come back to her. Sir, we also have one question which is regarding a technical term am I you audible? used. It is, sir, your video is not clear. I mean, it's not showing. Yes, now this is fine. Okay, so sir, there is one question regarding a clarity seeked about a technical term, Ajan Bahu. What does it mean? Someone is asking. Ajanu Lambabahu. Ajanu means the hand reaching up to the knees. Janu means knee. Ajanu Lambabahu. The hand extended down to the knees. Okay. Thank you very much, sir. Sir, we have another question. Please, sir, could you please elaborate a little bit on the holistic perspective of Jainism? Yes, holistic perspective was that they were equally concerned. Just I will explain so many things, could be 3 points. One, there Syadvarad Anekantvad is it does reflect the holistic perspective. To understand the whole, we must understand the part. And it is only the part we know it is accepted through Syadvad. And that make us refrain from the conflict. Conflict is only that I'm correct, you say you are correct. Absolute. So not absolute, but relative, the truth they have propounded. Second is as to the ecology. They have honored, I have just said that as Langshan we find the animal and bird figures with the Tirthankaras on pedestal, and also all the 24 Tirthankaras are provided with some or the other trees overhead, means ecology. Then throughout ahimsa they have taken care of, and that is a universal point. Actually they have taken care of all such things of life in actuality, which lead us to the ultimate peace. So they have always in mind that only through the concept of being vitaragi, just withdrawing ourselves like the turtle or kachua from the worldly things, we can attain the peace, and peace is in itself is equal to salvation. So these 3 things and so many things they have given. So a holistic perspective they have taken. They when the inscription said Sabbajan Hitai Sabbajan Sukha, what else could be the best example? The image they have made of a Jain Tirthankar registered name is Mahavir, but what they write is that it is for the happiness and welfare of all. That this all is the holistic perspective. Okay, next, please. Okay, so sir, because we are running out of time, we will sort of not take any other questions. Right. Thank you very much for your insightful answers. I am sure the participants are very much satisfied with the answer. और अब हम आज के इस सेशन के अंत पर पहुंच चुके हैं. मैं प्रोफेसर तिवारी का धन्यवाद करता हूं
उन्होंने अपना बेशकीमती समय हमारे साथ साझा किया और अपना ज्ञान तो साझा किया ही। सभी दर्शक जो कि हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका धन्यवाद। आज के इस सेशन को मैं इस भावना से विराम देना चाहूंगा कि सभी जीवों का कल्याण हो और सभी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो। जय जिनेन्द्र।